नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने पत्ती डेली मैसेज बुक पार्ट 2 वॉल्यूम 2 के नए अध्याय के साथ उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, पहले इंग्लिश के वर्ड को ध्यान से सुनते हैं, फिर हिंदी का अर्थ आपके साथ शेयर करूँगा। सोल परफेक्शन, फ्रांसिन मटेरियल, एसेट फ्रॉम सिल्विया ब्राउन्स। सोल परफेक्शन, चैनल मटेरियल। लाइफ इज अ गेम ऑफ टेस्ट एंड स्किल। से टू योरसेल्फ ड्यूरिंग द डे, दिस इज अ गेम, this is a serious game of gain of solitary evolvement toward perfection. Will your mind stay the same on the other side? Of course it will. No one in a physical body has no fear. Life is fraught with phobias, but in death, the absence of fear happens instantaneously. Fear is only known in physiological form. The only thing to fear is fear itself. After you have lived your life, you can come back to the other side where you are absolutely aware that there is no fear. You go directly to the hall of wisdom where you and your goal sit down and look at scanning apparatus which you can go through your life. You sit and view your life with your guide or alone as you choose. There is a constant researching. You will see groups sitting around and viewing parts of their lives, talking to each about what could have been done better to help the spirituality of the person. Everything is done without ego. You don't see people required to justify their position. They are truly interested in how they could have done it better. Now, all this is personal, so not one other group ever has to know unless you wish it. No one put your life on display and holds up for ridicule. That would never be done anyway. In truth, no one holds you up for ridicule more than you do yourself. आइए दोस्तों, इसको हम दोबारा ध्यान से सुनते हैं। Soul Perfection, Francine Material, aside from Sylvania Brown, Soul Perfection, Channel Material. Life is a game of test and skill. Say to yourself during the day, this is a game. This is a serious game of gain of solitary evolvement toward perfection. Will your mind stay the same on the other side? Of course it will. No one in physical body has no fear. Life is fraught with phobias, but in death the absence of fear happens instantaneously. Fear is only known in a physiological form. The only thing to fear is fear itself. After you have lived your life, you come back to the other side where you are absolutely aware that there is no fear. You go directly to the hall of wisdom where you and your guide sit down. You can look at a scanning apparatus with which you can go through your life. You sit and view your life with your guide or alone as you choose. There is a constant researching. You will see groups sitting around and viewing parts of their lives, talking to each about what could have been done better to help the spirituality of the person. Everything is done without ego. You don't see people required to justify their position. They are truly interested in how they could have done it better. Now, all this is personal, so not one other group entity ever has to know unless you wish it. No one put your life on the display and holds you up for ridicule. That would never be done anyway. In truth, no one holds you up for ridicule more than you do yourself. आइए दोस्तों, इसके हिंदी के अर्थ को बड़े ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। आत्मा की पूर्णता, फ्रांसिस सामग्री, सिलिया ब्राउन्स की पुस्तक सोल परफेक्शन से अंश लिए गए। चैनल सामग्री, जीवन परीक्षण और कौशल का खेल है। दिन में अपने आप से कहें, यह एक खेल है। यह लाभ का एक गंभीर खेल है। पूर्णता की ओर एकांकी विकास का खेल है। क्या दूसरी तरफ भी अपना मन वैसा ही रहेगा? बेशक ऐसा ही रहेगा। भौतिक शरीर में किसी को भी भय नहीं है। जीवन भय से भरा हुआ है।
लेकिन मृत्यु में भय का अभाव तुरंत हो जाता है। भय केवल शारीरिक रूप से जाना जाता है। डरने वाली एकमात्र चीज स्वयं डर है। अपना जीवन जीने के बाद आप दूसरी तरफ वापस जाते हैं, जहां आप पूरी तरह से जागरूक होते हैं कि कोई डर नहीं है। आप सीधे ज्ञान के हॉल में जाते हैं, जहां आप और आपका मार्गदर्शक बैठते हैं और एक स्कैनिंग उपकरण को देखते हैं जिसके साथ आप अपने जीवन से गुजर सकते हैं। आप बैठकर अपने जीवन को देखते हैं, अपने मार्गदर्शक के साथ या अकेले, जैसा आप चाहें। निरंतर सोच जारी है। आप देखेंगे कि लोग एक साथ बैठकर अपने जीवन के कुछ पहलुओं पर विचार कर रहे हैं तथा प्रत्येक व्यक्ति इस बारे में बात कर रहे हैं कि व्यक्ति की आध्यात्मिकता में सुधार के लिए क्या बेहतर किया जा सकता था। सब कुछ अहंकार के बिना किया जाता है। आप लोगों को अपनी स्थिति की ठहराने की जरूरत नहीं देखते। वे वास्तव में इस बात में रुचि रखते हैं कि वे इसे और बेहतर कैसे कर सकते हैं। अब यह सब व्यक्तिगत है, इसलिए किसी अन्य व्यक्ति को कभी यह जानने की जरूरत नहीं है जब तक कि आप ऐसा ना चाहें। कोई भी आपके जीवन में प्रदर्शित नहीं करता और आपको उपहास का पात्र नहीं बनाता। वैसे ही ऐसा कभी नहीं किया जाएगा। सच में कोई भी आपको ज्यादा उपहास का पात्र नहीं बनाता। आइए दोस्तों, इसको दोबारा ध्यान से सुनते हैं। आत्मा की पूर्णता, सिल्विया ब्राउन्स की सोल परफेक्शन से अंश लिए गए हैं। चैनल सामग्री, जीवन परीक्षण और कौशल का यह खेल है। दिन में अपने आप से कहें, यह एक खेल है। यह लाभ का एक गंभीर खेल है। पूर्णता की ओर एकाकी विकास का खेल है। क्या आप दूसरी तरफ भी आपका मन वैसा ही रहेगा? बेशक ऐसा ही रहेगा। भौतिक शरीर में किसी भी को भी भय नहीं है। जीवन भय से भरा हुआ है, लेकिन मृत्यु में भय का अभाव तुरंत हो जाता है। भय केवल शारीरिक रूप से ही जाना जाता है। डरने वाली एकमात्र चीज स्वयं डर है। अपना जीवन जीने के बाद आप दूसरी तरफ वापस आते हैं, जहां आप पूरी तरह से जागरूक होते हैं कि कोई डर नहीं है। आप सीधे ज्ञान के हॉल में जाते हैं, जहां आप और आपका मार्गदर्शक बैठते हैं और एक स्कैनिंग उपकरण को देखते हैं जिसके साथ आप अपने जीवन से गुजर सकते हैं। आप बैठकर अपने जीवन को देखते हैं, अपने मार्गदर्शक के साथ या अकेले, जैसा आप चाहें। निरंतर सोच जारी है। आप देखें कि लोग एक साथ बैठकर अपने जीवन के कुछ पहलुओं पर विचार कर रहे हैं तथा प्रत्येक व्यक्ति इस बारे में बात कर रहे हैं कि व्यक्ति की आध्यात्मिकता में सुधार के लिए क्या बेहतर किया जा सकता है। सब कुछ अहंकार के बिना किया जाता है। आप लोगों को अपनी स्थिति की ठहरने की जरूरत नहीं है देखते। वे वास्तव में इस बात पर रुचि रखते हैं कि वे इसे और बेहतर कैसे बना सकते हैं। अब यह सब व्यक्तिगत है, इसलिए किसी अन्य व्यक्ति को कभी यह जानने की जरूरत नहीं है जब तक कि आप ऐसा ना चाहें। कोई भी आपके जीवन में प्रदर्शित नहीं करता और आपको उपहास का पात्र नहीं बनाता। वैसे भी ऐसा कभी नहीं किया जाएगा। सच में कोई भी आपको ज्यादा उपहास का पात्र नहीं बनाता। दोस्तों, यह अध्याय यहीं तक। कल फिर आपके साथ नए अध्याय लेकर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू।